Good morning, students. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning and happy new year to all. Same. Same to you, sir. थैंक यू बेटा। तो एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं। So first unit is Riemann integration, ठीक है। So we will learn the basics of integration in this. अभी तक तुमने जो इंटीग्रेशन करा है वो सारे फॉर्मूले करे हैं तुमने डायरेक्ट। वो फॉर्मूले कहाँ से आए हैं दैट यू हैव नॉट डन। सो वी विल डू दैट इन दिस यूनिट, ठीक है, कि हाउ वी गेट द फॉर्मूलेज फॉर इंटीग्रेशन। अब तुम्हें पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज minus cos x, but why it is so? So that we all will do in this Riemann integration. Okay, then second unit is improper integral. Improper integral में क्या होता है, या तो जैसे Riemann integration is for functions which are bounded and they are defined on closed and bounded interval. तो second unit में क्या करेंगे हम, या तो फंक्शन अनबाउंडेड कर देंगे या अपने इंटरवल को अनबाउंडेड कर देंगे। तो उस केस में हमारे पास उस टाइप के इंटीग्रल्स को वी कॉल इट एज इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। तो सेकेंड यूनिट में हम वो पढ़ेंगे एंड वी विल स्टडी ऑल्सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, बीटा एंड गामा फंक्शंस, ठीक है। दिस दे आर बेसिकली इम्प्रॉपर इंटीग्रल ओनली, बट बिकॉज ऑफ देयर इम्पोर्टेंस they are given special names. They are called beta and gamma functions, ठीक है। So we will study them and their properties also. Then in the third section we will study सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। अभी तक तुमने क्या करा है, या तुमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस नहीं करा ना, अभी तक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स करा हुआ है, राइट? Yes. हाँ, सो नाउ इन दिस यूनिट वी विल डू सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस। सो फिर जैसे ही फंक्शंस का रोल आता है तो हमारे पास दो टाइप की कन्वर्जेंस हो जाती है। एक हो जाती है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, एक हो जाती है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। सो वी विल लर्न व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम and under what condition a function will be called pointwise convergent or a uniform convergence. Okay, so this is all about section unit 3. Then in the unit 4 we will learn about power series. So तुमने पढ़ा होगा ex की पावर सीरीज, sin x की पावर sin x की सीरीज, राइट? ex की सीरीज क्या होती है? समेशन x to the power n upon n factorial, राइट? पढ़ी हुई ना, e to the power x is equal to, ये कहीं पे देखा होगा तुम सबने, किसी ने? हाँ, तो वो सीरीज कैसे आती है वी विल लर्न इन दिस यूनिट, ठीक है। टेलर्स लास्ट ईयर हमने टेलर्स पढ़ा ही था, राइट? हाँ, उसमें तो करा ही था हमने, राइट? यस सर। हाँ, तो उसी का एक्सटेंशन है ये पावर सीरीज, ठीक है सर। दिस इज ऑल देयर इन योर सिलेबस। So this whiteboard is visible to everyone? Yes. Oh, Yes, sir. okay, great. So we will start with Riemann integration. So let us discuss its historical aspect. So in 1660s, Newton first introduced this concept of integration. Concept of integration and he termed it as inverse tangents, ठीक है। Why inverse tangent? So because it's inverse of derivative and derivative signifies tangent. Yes. Slope of a tangent. Yes, क्योंकि डेरिवेटिव जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिफाइन करता है, और इंटीग्रेशन इज कंसिडर्ड टू बी द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. सो Newton termed it as inverse tangents. Okay, so this was for some very few functions, ठीक है। He introduced the concept of integration for very few functions.
functions. Okay, then in 1680s, Leibniz introduced the process of finding areas under the curve by using reversal of the process of finding tangents. Okay, so basically he extended the concept introduced by Newton. ठीक है, so क्योंकि इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन ऑफ अ कर्व इज द एरिया अंडर द कर्व, राइट. Integration of a function represents the area under the function, right? So Leibniz introduced the process of finding areas under the curve by using the reversal of the process of finding tangent. So इस ये Leibniz का भी almost similar ही काम था कि integration is inverse of differentiation. So both the mathematicians, they basically showed that integration is reverse of differentiation. Basically both of them showed this, right? Then in 1880s, I think, yes, 1880s, it was 1850s. In 1850s, Riemann introduced a new method of finding integration, and this method was independent of the process of differentiation. इन दोनों में differentiation यूज हो रहा था because they were using tangents, right? So इन दोनों में differentiation यूज हो रहा था, but Riemann introduced a totally new method of finding integration, which was independent of the method of differentiation. ठीक है, अगर तुम्हें 12th का याद हो तो तुमने ज़्यादातर जितने भी इंटीग्रेशन फाइंड करे हैं वो बेसिकली डिफरेंशिएशन को यूज करके करे हैं, राइट? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. बट नाउ यू विल लर्न, वैसे तुमने वो वाला भी मेथड करा हुआ है विच इज इंटीग्रेशन एज सम्स, पढ़ा हुआ नहीं है? Yes, sir. इंटीग्रेशन एज सम्स वाला एक वो सेक्शन होगा तुम्हारा सिलेबस में. सो दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रीमान. ओके, दैट मेथड इंटीग्रेशन एज सम्स. सो उससे फिर सब कुछ निकलता है, ठीक है. और क्यों इसकी इम्पोर्टेंस थी? वैसे तो न्यूटन ने भी डिफाइन करा हुआ है इंटीग्रेशन, वो भी ऑलमोस्ट 200 years बिफोर व्हाट रीमान इंट्रोड्यूस्ड. लेबनिज ने भी करा हुआ है. देन व्हाई इंटीग्रेशन इज टर्म्ड आफ्टर रीमान? बिकॉज ही वाज एबल टू शो दैट the class of integrable function is much larger than the class of differentiable functions and class of continuous functions, right? And that is why it was named after Riemann and not after Newton or Leibniz. By this method, it was established that the class of integrable functions is much larger than the class of differentiable functions and the class of
कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, so Riemann introduced this method and due to which it was proved that the class of integrable functions, मतलब कि जिन फंक्शन का हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं वो बहुत ही बड़ी क्लास है कंपेयर टू द क्लास ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड क्लास ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। अब देखो न्यूटन और इन्होंने तो डिफरेंशिएशन का यूज करके रहा था, सो दे डिफाइंड इट एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। सो यहाँ पे दे वर एबल टू प्रूव दैट द क्लास ऑफ इंटीग्रल फंक्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द class of differentiable function, but Riemann was able to show that the class of integral function is much larger than the class of differentiable function and the class of continuous function. Hence the process is called Riemann integration। ठीक है, इसलिए इनके नाम पे पड़ा था ये Riemann integration। Okay, that's why it is named after him, not otherwise इनसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था इंटीग्रेशन को, but because he introduced a totally different method and it was also important, he was able to show that the class of integral function is much larger than the class of differentiable and class of continuous function. That's why the integration was termed after Riemann and we call it as Riemann integration, और फंक्शन को Riemann integrable function बोलते हैं। तुमने वो जो इंटीग्रेशन है सम्स पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था? जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है, इफ वी हैव सम फंक्शन, ओके, सपोज दिस इज माय फंक्शन, ओके, एंड this is A, this point is B, and I want to find this area under this curve. So I want to find this area. So how I will find this area? इंटीग्रेशन सम्स में क्या करते थे हम, अगर किसी को याद हो? सर ए से बी तक जितने भी पॉइंट है हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हम बेसिकली इसमें क्या करते थे, वी यूज टू डिवाइड दिस छोटे छोटे पार्ट, हाँ इंटरवल्स में हम इसे, ये जो ए बी हमारा इंटरवल है इसे हम इक्वल पार्ट्स में बांट देते थे, एन पार्ट्स में, राइट। इसको हम एन पार्ट्स में डिफाइड, ये एच साइज का ये होता था, दिस यूज टू बी एच साइज। एच क्या होता था? एच वॉज बी माइनस ए बाई एन, राइट। तो हर एक हम जो इस इंटरवल को एच वो एन पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे, और हर एक पार्ट का लेंथ क्या होता था? एच होता था, राइट। तो दिस वॉज ए प्लस एच, ए प्लस 2h, a plus 3h, and so on, and this was a plus n minus 1 h, and this was a plus nh, right? so इस तरह से कर देते हैं हम, ठीक है। सो अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास ये लाइंस आ गई, ये पॉइंट हो गया, फिर ये पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरह से इसको मैं इस कलर से, ठीक है। जैसे एक लाइन ये हो गई, फिर एक लाइन ये हो गई, ओके, देन दिस लाइन, देन दिस लाइन, देन दिस लाइन, और ये और ये, ठीक है, एंड दिस इज दिस। फिर क्या करते थे हम, अब ये एरिया निकालना है हमें, तो हम क्या करते थे, ये रेक्टेंगल ले लेते थे, ये वाला, दिस रेक्टेंगल, ठीक है। you take this rectangle,
तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ये वाला फर्स्ट रेक्टेंगल का, ये बताएगा फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? ये पॉइंट क्या है? दिस पॉइंट इज f of a, this is f of a plus h, this point is f of a plus 2h. तो पहले वाले रेक्टेंगल का ये फर्स्ट रेक्टेंगल, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन, ये वाला n-1 और ये n रेक्टेंगल. सो हमारे पास n रेक्टेंगल्स है. फर्स्ट वाले का एरिया कितना है? एरिया ऑफ a1 क्या है? a1 अगर मैं बोलूं a1 क्या होगा? fa इंटू h. एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ क्या है अपनी? ये दिस इज लेंथ विच इज f ऑफ a, एंड ये क्या है? ब्रेथ कितनी है? h. सो लेंथ इंटू ब्रेथ, सो विच इज fa इंटू h. a2 क्या है अपना? एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल f a प्लस h इंटू, नहीं a प्लस h नहीं है बेटा, ये लेंथ ऑफ दिस क्या है? ये भी h ही है ना. a प्लस 2h माइनस a प्लस h विच इज अगेन h. मैंने यही तो बताया था ना, सारे मैंने h साइज के लिए हैं. सो f this a3 was f of a plus 2h into h, and similarly ये an क्या होगा अपना? an minus 1 is f of a plus n minus 2h into h, and an is f of a plus n minus 1h into h. तो ये जब तुम वो करते हो, अब ये टोटल एरिया क्या हो जाएगा? समेशन ai I इक्वल टू 1 to n, विच इज summation I equal to 1 to n f of a plus I minus 1 h into h. तो h क्योंकि सब में है, so h कॉमन आ जाएगा बाहर, which was this I minus I equal to 1 to n f of a plus I minus 1 h. अगर फॉर्मूला याद हो तो यही फॉर्मूला होता था, राइट. सो अब ये जो है एरिया, ये रेक्टेंगल्स का आ गया. तो कर्व का एरिया में कितना एरर है? एरर क्या आ रहा है हमारा? ये वाला रीजन, ये एरर है ना. यहाँ पे ये छूट गया, यहाँ पे ये छूट गया, इस रेक्टेंगल का इतना ये पोर्शन छूट गया. सो ये अपना एरर है, राइट. दिस इज एरर. ये जो मैंने ब्लू पोर्शन से कराया है, स्काई ब्लू कलर से, दैट इज अवर एरर while calculating the area of this, the area under the curve, right. अगर इसको मैं a बोलूं, दिस a, और एरिया अंडर द कर्व, सो एरर कितना हो गया अपना? एरिया अंडर द कर्व माइनस a, ये एरर है अपना, राइट. समझ रहे हो? किसी को अभी तक यस सर. कुछ नहीं समझ आ रहा तो बता दो. अभी Yes, तक sir. अभी तक तो सिंपल ही है, ज्यादा कुछ करा नहीं हमने. रेक्टेंगल्स में पार्टीशन करा है और फिर उसको एरिया करा है, राइट. ठीक है. अब इस एरर को रेड्यूस कैसे कर सकते हैं हम? हाउ कैन वी रिड्यूस दिस एरर? सर h को छोटा लेंगे. हाँ, h को अगर हम छोटा छोटा करते जाएं तो एरर हमारा कम होते जाएगा, राइट. जैसे अगर मैं देखूं, अगर मैं इसी में दो, अगर h को हाफ कर दूं और छोटा कर दूं, ठीक है. जैसे मैं h को, अगर मैं ये वाली नई लाइन डाल देता हूँ इसमें बीच में,
अगर मैं h को ये और छोटा कर दूं, ठीक है, तो अब देखो ये, अब ये कितना कम हो गया, ये इतना पोर्शन आ गया ना रेक्टेंगल के अंदर, राइट। अब एरर कितना रिड्यूस हो गया, अगर मैं और h को छोटा कर दूं तो एरर कितना रिड्यूस हो गया। अब ये पोर्शन आ गया, बस इतना पोर्शन बचा, तो जितना h को छोटा करोगे तुम्हारा एरर उतना कम हो जाएगा, राइट। सो एरर 0 कब होगा, h tending to 0. हाँ, 0. तो as h tends to 0 then error tends to 0, राइट। और error tends to 0 का मतलब है कि लिमिट एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा बेसिकली, सो एरिया अंडर द कर्व is equal to limit h tends to 0 a, which was limit h tends to 0 summation, या h यहाँ पे ले लिया, I equal to 1 to n f of a plus n minus 1 h. So this was the formula that you did. यही फॉर्मूला यूज करते थे ना इंटीग्रेशनलेस सम्स में। Yes, sir. ठीक है, सो दिस वाज द मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय रीमान। सो व्हाट ही डिड, ही यूज्ड टू पार्टीशन द इंटरवल इनटू n पार्ट्स, और फिर उसमें से, लेकिन रीमान क्या करता था, वो यहाँ पे हम तो फर्स्ट ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, इनिशियल पॉइंट ले रहे हैं, हमेशा हर जगह हमने ये पॉइंट लिया है, राइट। हर जगह हमने ये वाला पॉइंट लिया है ना, इनिशियल पॉइंट। रीमान क्या करता था, ही यूज्ड टू टेक एनी पॉइंट इन द इंटरवल जिससे कि मिनिमम आ जाए। सो इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट ही यूज्ड टू टेक, मैं इसको दोबारा रीड्रॉ करता हूँ। सो दिस इज द मेथड दैट यू डिड इन योर 12th स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन एज सम्स, ठीक है ना, उसमें तुम यही फॉर्मूला यूज करते थे। सो व्हाट रीमान यूज्ड टू डू, रीमान इंटीग्रेशन, so what he used to do was, suppose this is my function, this is a, this is b, okay, this is a, this is b. So what he used to do, he used to partition the intervals. वो क्या करता था, इंटरवल्स को पार्टीशन कर देता था, ओके, n पार्ट्स में। 1 2 इस तरह से he used to partition the intervals, ठीक है। But what he used to do was, he used to take any point in the interval, कोई भी, जैसे ये इंटरवल है, दिस, इसको वो x0 कहता था, x0, दिस इज x1, x2, x3, ठीक है, देन xn minus 2, xn minus 1 एंड xn। सो इस तरह से इंटरवल को लिखता था। सो दिस ए बी इंटरवल को कैसे लिख दिया इस हमने, x0 से x1 यूनियन, x1 से x2 यूनियन, xn minus 1 to xn। फिर इंस्टेड ऑफ टेकिंग द इनिशियल पॉइंट या लास्ट पॉइंट, ही यूज्ड टू टेक एनी आर्बिट्री पॉइंट। इसमें हर एक में कोई भी पॉइंट उठा लेता था वो, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट। जैसे ये हो गया, इसको आप यू कॉल इट एज y1, इसको y2, इसको y3। सो हर एक में से एक वो उठा लेता था, yn minus 1 एंड दिस इज yn। सो yi belonging to xi minus 1 to xi, any point yi, any yi belonging to, he used to pick any yi belonging to this, और फिर इससे रेक्टेंगल बनाता था। सो दिस इज योर
Fy1 कहाँ हो जाएगा, इधर आ जाएगा. This is Fy1, this is Fy2, this is Fy3, this is Fyn minus 1, this is Fyn. So you used to take this. So कोई भी पॉइंट उठाता था फिर इससे रेक्टेंगल्स बनाता था. He used to draw the rectangles from using this. So this एक अब मैं बना दूँ. जैसे ये देख रहे हो, ये पॉइंट अलग अलग आ रहे हैं ना, ये बीच में आ रहे हैं. So इस तरह से ये रेक्टेंगल बनाता था. He used to draw the rectangles like this. Okay, so instead of taking this rectangle, he used to take this rectangle. Okay, so this rectangle, then this rectangle. So थोड़ा बाहर हो, this rectangle, then this rectangle, then this rectangle. ठीक है. So कुछ चीजें बाहर की आ रही होती थी, एक्स्ट्रा आ रही होती थी, कुछ कम आ रही होती थी. अब जैसे यहाँ का पोर्शन ये वाला रह गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया इसमें रेक्टेंगल के अंदर, तो ही यूज्ड टू टेक लाइक दिस. इसका एरिया क्या आएगा बताओ, पहले रेक्टेंगल का एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल कोई बता सकता है? एक मिनट. So this is first rectangle, this is second, this is third, this is n minus 1 rectangle, and this is n. Okay, so what is the area of first rectangle? A1 Fy1 into what is x1 minus x0. And what is the area of second rectangle? Fy2 x2 minus x0. Oh, x2 minus x1. And similarly, what is the an Fyn xn minus x0. और जब तुम इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, समेशन k इक्वल टू 1 to n f y k माइनस एक्स प्लस 1 होना चाहिए सर. एक्स के माइनस एक्स के माइनस 1, राइट. अब ये जीरो, ये इसका एरर का कैसे रिड्यूस होगा? जब ये हर एक इंटरवल जो है उसकी लिमिट जो है मतलब वो जीरो लेंथ की हो जाएगी, राइट, ऑलमोस्ट, राइट. वहां पे तो हमने h कॉमन लिया हुआ था. अब यहाँ पे साइज हमें पता नहीं है, हर एक का साइज अलग हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक मैक्सिमम ले लेंगे, जो भी मैक्सिमम लेंथ होगा. सो जैसे इसको पार्टीशन बोलते हैं, तो p अभी नाम दे देते हैं, तो p नॉर्म p से डिनोट कर देते हैं, विच इज मैक्सिमम ऑफ xi माइनस 1. जो भी मैक्सिमम है वो ले लिया हमने, ठीक है. i इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू n. सो ये मैक्सिमम हो गया. अगर ये 0 पे जाएगा तो हर एक इंटरवल की लेंथ 0 हो जाएगी, राइट, क्योंकि मैंने मैक्सिमम लेंथ का इंटरवल ले लिया यहाँ पे. सो अगर उसको मैं 0 पे ले जाऊंगा तो सारी 0 पे चली जाएगी. तो हमारा एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, लिमिट this maximum value tends to 0 a, right. This will be our area under the curve, right, which is limit p tends to 0 summation k equal to 1 to n f of yk xk minus 1, and this is called Riemann sum.
ठीक है, रीमान ने ये फॉर्मूला दिया था, दिस इज रीमान सम। समझ आया सबको रीमान सम कैसे आया? अभी जो हमने पहले वाले उसमें बनाया था उसमें वी टुक दी एंड पॉइंट्स, राइट? लेकिन अभी रीमान यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू टेक एनी आर्बिट्री पॉइंट इन द सब इंटरवल। जो ये सब इंटरवल x1 to x0 है, x0 to x1, तो इसमें से कोई भी पॉइंट उठा लेता था। ही यूज्ड टू टेक एनी आर्बिट्री पॉइंट एंड देन उससे रेक्टेंगल, ही यूज्ड टू ड्रॉ द रेक्टेंगल, ओके। और फिर ही यूज्ड टू टेक द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इंटरवल। जो भी यहाँ पे हमने n इंटरवल्स बनाए हैं, इसमें से जिस भी इंटरवल की मैक्सिमम लेंथ होती थी वो ले लेता था, एंड देन ही यूज्ड टू टेक द लिमिट ऑफ दैट इंटरवल इक्वल टू 0। सो जैसे ही उसको लिमिट को 0 करेंगे तो सारे इंटरवल्स की लेंथ 0 हो जाएगी, तो हमारा एरर जो है वो खत्म हो जाएगा, अपना वो एरर खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा एरिया अंडर द कर्व विल बी इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस सम, राइट? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है नहीं? ओके, सो डार्बॉक्स, फिर then came Darbox. Darbox sum. So what he did, he took two different rectangles, ठीक है? इन्होंने इसने क्या करा, he used to take two different rectangles. जैसे दिस इज सपोज योर फंक्शन, ठीक है, दिस इज योर फंक्शन, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, ओके, एंड दिस इज ए, this one is A, this one is B. So this, इसको x0 बोलोगे, इसको xn, ये x1, x2, so on, xn minus 1, xn minus 2, xn minus 1. इस तरह से you partition the interval AB into n intervals, ठीक है? n सब intervals में partition कर लिया हमने, ठीक है? This is how we are partitioning. So ये अपने इंटरवल्स हो गए, ओके। सो दिस इज हाउ यू यूज टू, सो इसमें पार्टीशन कर लिया। देन व्हाट डार्बॉक्स डिड इज, okay, so what Darbox did is he used to take two different sums, ठीक है? एक को अपर सम कहता था, he used to call it as upper sum and lower sum. So upper sum में he used to take the supremum in the interval. जैसे ये इंटरवल x1 x0 है, इसमें सुप्रीमम कहाँ पे आएगा बताओ? इस इंटरवल में सुप्रीमम कहाँ पे आएगा? इस इंटरवल में फंक्शन का सुप्रीमम x1 पे आ जाएगा। इसमें x2, जैसे यहाँ पे तो हर एक पॉइंट पे आ रहा है, एंड पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पे अगेन इस पे ही आ जाएगा, राइट? और ये, लेकिन में भी ऐसा भी हो सकता है बीच में भी आ जाए सुप्रीमम, ठीक है? और इन्फीमम कहाँ आ रहा है इसमें? सो इसमें ये सुप्रीमम लेता था, ही यूज्ड टू टेक द सुप्रीमम इन द सब इंटरवल्स, ठीक है? अपर सम मतलब सुप्रीमम और लोअर सम मतलब इन्फीमम। सो रीमान क्या करता था, ही यूज्ड टू टेक एनी आर्बिट्री पॉइंट, बट क्योंकि आर्बिट्री पॉइंट लेने में कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आर्बिट्री पॉइंट पता नहीं है। सो व्हाट डार्बॉक्स यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू टेक सुप्रीमम एंड इन्फीमम। सो सुप्रीमम, और क्योंकि बाउंडेड फंक्शन ले रहे हैं, ये रीमान इंटीग्रेशन पूरा बाउंडेड फंक्शन पे डिफाइंड है, सो सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है? सो ये तुम्हें सुप्रीमम ले लिया यहाँ पे तुमने हर एक इसमें,
ठीक है। इसमें जैसे यहाँ पे मैं एक और लाइन, इसका सुप्रीमम यहाँ कहीं आएगा एक का, जैसे एक और लाइन बना ही लेते हैं, ठीक है, सो दैट थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। ओके, सो आई एम ड्राइंग दिस। सो इसका सुप्रीमम इस पॉइंट पे आएगा। तो इसका सुप्रीमम इंस्टेड ऑफ दिस पॉइंट इस पॉइंट पे आएगा, राइट। अब इसमें अपर सम में ही व्हाट ही यूज्ड टू डू, ही यूज्ड टू ड्रॉ दिस रेक्टेंगल्स। तो ये इससे ड्रॉ करता था रेक्टेंगल, यूज्ड टू टेक दिस रेक्टेंगल, ओके, यूज्ड टू टेक दिस रेक्टेंगल सुप्रीमम से। सुप्रीमम लेने की वजह से क्या हो रहा है, सुप्रीमम लेने की वजह से क्या हो रहा है रेक्टेंगल में, एरर आ रहा है। नहीं एरर तो आ रहा है, एरर ये जो ये सम आ रहा है, ये रेक्टेंगल्स का सम जो आएगा ये क्या आएगा, ये वाला नहीं, is greater than the area हाँ, under जो ये वाला जो आ रहा है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एरिया अंडर द कर्व, राइट। सो यहाँ से जो सम निकालेंगे हम, यहाँ से जो दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विल बी ग्रेटर देन, इसको अपर सम बोलते हैं, ठीक है, दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, इसको अपर सम बोलते हैं। सो दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, राइट, इसको अपर सम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डार्क बॉक्स ने क्या करा, दूसरे में क्या करता है, ही यूज्ड टू टेक इन्फीमम। सो इन्फीमम वैल्यू कहाँ आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर, देन इस पॉइंट पे, देन इस पॉइंट पे। सो ये वाले रेक्टेंगल्स लेता था वो, ठीक है। So this is how he used to take the rectangles. तो ये वाला जो एरिया आएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या आएगा, इट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, यहाँ पे जो ये एरिया आएंगे, दिस इज कॉल्ड लोअर सम, इज ऑलवेज less than equal to area under the curve, right. This will always be smaller, क्योंकि इन्फीमम वाला ले रहे हैं तो हमेशा ये जो रेक्टेंगल है ये नीचे आएगा कर्व से, ये वाला हमेशा ऊपर आएगा क्योंकि सुप्रीमम वाला ले रहे हैं, ये वाला हमेशा। तो एरिया अंडर द कर्व निकालना होगा तो क्या होना चाहिए हमारा, एरिया अंडर द कर्व के लिए ये दोनों जो है इक्वल होने चाहिए, राइट, तब बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू इसकी और इसकी लिमिटिंग वैल्यू दोनों जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तब जैसे अगर मैं p को दोबारा वही p मैं दोबारा डिफाइन कर दूं, अगर मैक्सिमम ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू i लेस देन इक्वल टू n xi माइनस (1). सो लेंथ ऑफ द इंटरवल्स ले रहा हूँ, उसको अगर मैं p कह दूँ, नॉर्म, इसको नॉर्म कहते हैं, नॉर्म ऑफ पार्टीशन, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम ऑफ दिस। तो अगर ये टेंड्स टू 0 है, इफ दिस टेंड्स टू 0, सो इफ लिमिट नॉर्म p टेंड्स टू 0, अपर सम will be equal to limit norm p tends to 0, lower sum, ठीक है। तो क्या होगा, this equal value will be equal to the area under the curve, right। ये एरर कैसे रिड्यूस करेंगे, जब हम इसकी साइज को रिड्यूस करेंगे, राइट, तब ये बिल्कुल कर्व के पास आ जाएगा ना। ये एरर रिड्यूस करने के लिए हमें साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब कि लिमिट लेना पड़ेगा।
तो ये दोनों इक्वल आने का मतलब है कि एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू दिस वैल्यू. सो इस केस में हम कहते हैं कि फंक्शन इज इंटीग्रेबल एंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट. ओके, Yes, sir. समझ गए ना. सो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि फंक्शन इज इंटीग्रेबल एंड वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू, कॉमन लिमिटिंग वैल्यू. ठीक है, ये सारा रफ है, अभी प्रॉपरली हम करेंगे. ये बस आइडिया दे रहा हूँ मैं कि क्या करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में. सो ये है. सो दिस वाज द, सो हम ये वाली डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन की, बट वी विल कॉल इट एज रीमान इंटीग्रेशन बिकॉज रीमान ने जो है ये मेथड ऑफ फाइंडिंग रेक्टेंगल्स जो है ये रीमान ने इंट्रोड्यूस करा था. डाबॉक्स ने तो बस उसको क्या करा, ही टुक अपर सम एंड लोअर सम, दो डिफरेंट सम लेके उनके डिफरेंस को जीरो कर दिया बस बेसिकली. बट क्योंकि दिस मेथड ऑफ पार्टीशनिंग द इंटरवल इनटू रेक्टेंगल्स और फिर रेक्टेंगल्स को कंसीडर करके एरिया को लाना, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रीमान, इसलिए इसको हम फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल कहते हैं. फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल, इसको इसलिए रीमान इंटीग्रेशन कहते हैं. हम जो डेफिनेशन करेंगे वो ये वाली करेंगे. ठीक है, वी विल डू दिस डेफिनेशन बट वी विल कॉल द फंक्शन टू बी रीमान इंटीग्रेबल. बल्कि ये डेफिनेशन जो है दिस वाज गिवन बाय डाबॉक्स, अपर सम एंड लोअर सम वाली जो डेफिनेशन है दिस वाज गिवन बाय डाबॉक्स, बट सिंस द मेथड दिस पार्टीशनिंग द इंटरवल इनटू रेक्टेंगल्स, ये जो रेक्टेंगल वाला आइडिया है दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रीमान, सो दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड आफ्टर रीमान ओनली. सो इसलिए हम इसे रीमान इंटीग्रेशन कहते हैं. बट दिस डेफिनेशन जो हम यूज करेंगे दैट वी विल कॉल इट एज, वो गिवन टू इट वाज गिवन बाय रीमान ओ डाबॉक्स, बट वी विल स्टिल कॉल द फंक्शन टू बी रीमान इंटीग्रेबल. रीमान ने तो ये वाली डेफिनेशन दी थी, रीमान गेव कि हम कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लेके करेंगे. ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ लोअर सुप्रीमम या इन्फीमम हम कोई भी आर्बिट्री पॉइंट करेंगे. बट डाबॉक्स ने कहा कि उससे इजी हो जाएगा अगर हम एक बार सुप्रीमम ले लें और एक बार इन्फीमम ले लें और उन दोनों का डिफरेंस निकाल लें. ठीक है ना, डिफरेंस वही एरर होगा. सो अगर डिफरेंस को जीरो कर दिया तो हमारा मतलब एरिया आ गया. ओके, सो ये इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना, सबको समझ आ गया ना कि क्या होता है रीमान इंटीग्रेशन और क्या होता है डायबॉक्स इंटीग्रेशन. ठीक है, ओके. सो हम प्रॉपर डेफिनेशन जो है हम कल करेंगे. सो ये याद रखना, हम हमेशा रेक्टेंगल्स को कंसीडर कर रहे हैं. अगर ये समझ में आ जाएगा तो फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे, उतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें. ठीक है ना. Okay, so the time is also over, so we end our class here and we will meet tomorrow and we will properly do the definitions.